کو براہ راست یہ چلتے ہیں لاہور، جہاں پہ مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف کا نو منتخب ارکان اسمبلی سے خطاب جاری ہے۔ جو حال تھا 2017 میں 2018 میں 18 سے لے کے پھر 22 تک کیا ہوتا رہا پاکستان میں، وہ ساری ذمہ داری ان کے سر ہے۔ تو لوگوں نے میرا خیال ہے کہ جو ووٹ دیا وہ آپ کو کارکردگی کی بنا پہ دیا ہے، آپ کے کام اور آپ کی محنت پہ بل بوتے میں دیا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو شاباش دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت محنت سے کام کر کے دوبارہ وہ مقام حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ ہم نے کھو دیا تھا۔ یہ صحیح بات ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے، بڑا جان جوکھوں کا کام ہے یہ، کہ اس کو واپس پاکستان کو اس جگہ پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب کرے اور ہم نے سب نے مل کے ان کا ہاتھ بٹانا ہے، شہباز شریف کا بھی ہاتھ بٹانا ہے، مریم کا بھی ہاتھ بٹانا ہے۔ اور 1.5 سال میں ماشاءاللہ ایک عوامی خدمت کا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے، اکانومی کو گڑھے سے پھر باہر نکالا ہے اور یہ کہتے ہیں پاکستان ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا، ٹیک آف کر چکا ہے اللہ کے فضل سے، اڑان بھر چکا ہے پاکستان ماشاءاللہ۔ اب اس نے اوپر جانا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو ڈیفالٹ سے ملک کو نکالا ہے، ڈیفالٹ سے بچایا ہے، بینک کرپسی سے بچایا ہے پاکستان کو۔ ہماری تو اقتصادی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، اخلاقی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، معاشرتی اور معاشی دیوالیہ پن ہو چکا تھا، بلکہ انسانیت کا یہاں پہ دیوالیہ پن کر دیا گیا تھا۔ بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز تفریق نہیں تھی، نہ کوئی بڑوں کا ادب تھا، نہ کوئی چھوٹوں کا پیار تھا۔ پتہ نہیں شاید کرکٹ کھیلنے آئے تھے، وہی کھیلتے رہے یہاں پہ 5 سال۔ افسوس ہے اس بات کا ہے، اور بڑے چھوٹوں کا احترام ختم کر دیا انہوں نے، تو پاکستان ملک کا قوم کا دیوالیہ نکال دیا، ہمارے خارجہ امور کا دیوالیہ نکال دیا، IMF کو پھر ہمارے سر پہ لا کے بٹھا دیا۔ میں نے ان سے جان چھوڑائی تھی، ایک دوبارہ اس کو واپس لے آئے، امن و امان کا برا حال کیا، اس کا دیوالیہ نکال دیا۔ تو اور پھر غریب لوگوں کا دیوالیہ نکال دیا۔ میرٹ تو کہیں دیکھنے میں نہیں ملتا تھا ان کے زمانے میں۔ تو اب اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ جو ہے نا وہ سب چیزیں بحال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا، اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے، اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے۔ ان کا بیانیہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ان کا بیانیہ کیا تھا؟ چور ڈاکو کہتے تھے، خود چوری ڈاکے میں سب سے آگے، ساری داستانیں سامنے آ رہی ہیں آپ کے، پوری قوم کے سامنے آ رہی ہیں، اور پھر لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، الزام تراشی، گرہبانوں کو پکڑتے تھے، جلا دو، مار دو، پکڑ لو۔ کیا اس طرح کے بیانیے میں قومیں ترقی کرتی ہیں؟ آپ ذرا بتائیں، سوچیں مجھے کہ اس طرح کے ماحول میں کون سی قومیں ترقی کرتی ہیں؟ لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے مریم کے یہاں پہ پنجاب کے اندر 1,20,000 نئے گھر بن رہے ہیں غریبوں کے، اور ان کو گھر مل رہے ہیں، بن رہے ہیں، اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت لوگوں کو پھر مفت دوائیں مل رہی ہیں دوبارہ نئے سرے سے، جو شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی اس کو انہوں نے پھر آگے بحال کیا، انہوں نے کینسل کر دیا آگے، اور پھر لوگوں کا غریبوں کا مفت علاج معالجہ بھی ہو رہا ہے، اور پھر نئے ہسپتال شروع کر رہے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں، اسکالرشپس مل رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور ستھرا پنجاب ماشاءاللہ اپنا کام دکھا رہا ہے، گرین بسیں ہر ضلع میں، ہر شہر میں انشاءاللہ پہنچ رہی ہیں۔ ابھی تو آغاز ہے، ابھی تو اگلے 3 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بہت آگے جائے گا کام۔ تو پاکستان کا پنجاب کا امن و امان بڑا بہتر ہو گیا ہے۔
और लोग अपने आप को काफ़ी हद तक महफूज महसूस करते हैं। लोगों को राशन कार्ड मिल रहे हैं और फिर यहाँ कोई मज़हब की तमीज़ तफरीक नहीं है। दूसरे मज़ाहिब के लोग भी माशाल्लाह उनके भी जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए भी काम हो रहे हैं और सैलाब में लोगों ने, हुकूमत ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इन्होंने कहा जी हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वो सारा बाइकआउट आपके सामने है, जिसमें अब वो बाइकआउट कैसा बाइकआउट है जिसमें अयूब खान की बहू और उमर अयूब की बीवी जो है वो खुद इलेक्शन लड़ रही है और कहते बाइकआउट है। क्यों जी, अपना चौधरी साहब की बाइकआउट ऐसा होता है जी? और उनके उम्मीदवार खड़े थे, उसकी अपने लीडर की तस्वीरें ले लेके फिर रहे थे, कर रहे थे, सारी कैंपेनिंग कर रहे थे और ये कह रहे हैं बाइकआउट नहीं। पर ठीक है, ठीक हो गया। तो वो अपना मुझे आप बताएं कि हरीपुर में जो हमारा पंजाब के सूबे से बाहर है जिसके ये मेंबर बैठे हैं यहाँ पे भी इलेक्ट हुए हैं, मैं आप सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और जीतने पे बहुत बहुत मुबारक पेश करता हूँ मैं आपको। तो ये बैठे हैं, ये माशाल्लाह ये उसे 40,000 की लीड से जीते। क्यों बाबर 40,000 की लीड है? 44,000 की लीड बताएं। तो ये उनका बाइकआउट है। तो उस ज़माने में जैसे कि आप जानते हैं कि जिस तरह की यहाँ पे इंतज़ामिया चल रही थी, हर रोज़ नया चीफ सेक्रेटरी आ रहा है, हर तीसरे दिन आईजी बदल रहा है और कोई मुस्तकिल पॉलिसी नहीं है, कोई मुस्तकिल अपना मिजाजी नहीं थी और कोई अपना यहाँ पे ढंग के काम नहीं हो रहे थे। कोई तरक्की याफ्ता, कोई तरक्याती कोई काम हुआ ही नहीं। खैर इनकी तो बात छोड़ो, अल्लाह के फजल करम से तरक्की याफ्ता काम जब भी हुए हैं तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम नाम ले लें, देख लें जितने भी आपके दाएं बाएं जो मंसूबे बने हुए हैं सबके ऊपर मुस्लिम लीग की मोहर लगी हुई है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है ये। तो क्या आज माशाल्लाह एक बाकायदा पॉलिसी के तहत काम हो रहे हैं, मेरिट पे काम होते हैं और हर जो है आपकी चाहे काबीना हो, वजीर हो, मशीर हो या जो आपका चीफ सेक्रेटरी है या आईजी है, सीसीडी है या पंजाब के बाकी महकमे हैं, वो अपना अपना काम कर रहे हैं और यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं कि उसकी सिफारिश पे इसको लगा दो, इसकी सिफारिश पे आप उसको लगा दें। अपने कोई इस तरह की बेहंगम किस्म की ट्रांसफरिंग पोस्टर्स नहीं होती जहाँ से पिछले दौर में होती थी कि 4-4 दफा चीफ सेक्रेटरी बदले जा रहे हैं, 4-4 दफा आईजी बदले जा रहे हैं और सिर्फ यहाँ नहीं हर सूबे में जहाँ भी उनकी हुकूमत यही हाल था। तो आज एक अल्लाह के फजल करम से एक गुड फील फैक्टर है यहाँ, फील गुड फैक्टर है यहाँ पे। तो ये एक मुझे याद है कि एक हमारे ज़माने में होता था, जब मैं फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर बना तो लोग कहते थे कि बड़ा अच्छी एक हमें गुड फील फैक्टर महसूस होता है आपके दौर में। तो मैं समझता हूँ कि मुझे खुद आज उसके बाद इस दौर में एक गुड फील फैक्टर महसूस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़े अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए काम किए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम तो मेरे से भी आगे निकल गए, जो सही बात माननी चाहिए। मैं कई जगह के नहीं, मैं तो बड़ा बढ़िया था, मैं तो वो साहब फलां साहब नहीं भाई ये अगे निकल गए मेरे को तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे से आगे निकल गए हैं, मैं बड़ा खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे से और ज़्यादा आगे निकल जाए। एक जो माँ बाप जो होते हैं उनको अपनी औलाद के लिए यही सोचते हैं कि मेरी औलाद मुझसे भी आगे निकल जाए।
मेरे से भी ज़्यादा वो तरक्की करे, मेरे से भी ज़्यादा वो खुशहाल हो जाएं और लंबी उम्र पाएं, खुशहाली लेके आएं, खुद भी खुशहाल हों और अच्छे बन जाएं, मुझसे भी बेहतर हो जाएंगे। माँ बाप की ख्वाहिश होती है। तो मेरी भी अपना जो है ना वो मेरा वो छोटा भाई है शहबाज शरीफ, बड़ा अच्छा भाई है, बहुत प्यार करने वाला भाई है। मैं वो मुझसे प्यार करता है, मैं उससे प्यार करता हूँ। एक तरफ वो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, एक तरफ बेटी काम कर रही है, एक तरफ मेरे साथी बैठे हैं सारे दाएं और बाएं, ये आप देख रहे हैं सारे माशाल्लाह मेरे सारे दस्तों बाजू हैं सारे मेरे। ये यहाँ पे भी बैठे हैं, सामने भी बैठे हैं और मैं बड़ा खुश हूँ कि काम सही चल रहा है और मुझसे जो मदद हो सकेगी या हो रही है मैं करता हूँ, इंशाल्लाह करूँगा। मेरा फर्ज है और मेरी दुआ भी है, फर्ज भी है और मैं जिसको इंशाल्लाह ज़रूर अदा करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश खुर्म रखे। तो मैं मरियम से अभी कहूँगा कि चंद अल्फाज ये आपके खिदमत में पेश करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नवाज शरीफ साहब का भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज वो यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने हमें रौनक बख्शी और सर्जरी के बाद ही उनकी पहली बातचीत है। आपने देखा होगा कि गला भी ख़राब है, लेकिन वो माशाल्लाह इतने खुश थे कि आप सबसे मिलने के लिए वो खुद यहाँ पर आज आए और बड़ा अच्छा लगा हमें। सबसे पहले तो हम सर झुका के अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को इतनी बड़ी फतह से नवाजा। ये उसके करम के अलावा कुछ भी नहीं। और मैं नवाज शरीफ साहब को, उनकी पूरी जमात को, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं, परवेज़ रशीद साहब हैं, साद रफ़ीक साहब हैं, सब मौजूद हैं यहाँ पे, हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, सब मौजूद हैं। मैं तमाम कैंडिडेट्स को और पूरी मुस्लिम लीग नून को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आपने बहुत अच्छी माशाल्लाह कैंपेन चलाई और हर कैंडिडेट ने अपने अपने हलके में बहुत मेहनत की। मैंने बड़ी गहरी नज़र रखी हुई थी और मैं देख रही थी कि कैंडिडेट्स कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी नवाज शरीफ साहब ने बात की अली नूर न्याजी की कि मियाँ वाली से PMLN जीती है, तो आप यकीन करें कि जिस दिन मैं मियाँ वाली में ग्रीन बस जो है वो लॉन्च करने गई थी, मुझे उस दिन पता चल गया था कि मियाँ वाली में तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। और जो अपने दफ्तर से निकल के जो बाहर अवाम में जाता है, लोगों में मौजूद रहता है, उसको पब्लिक पल्स का पता होता है। तो ये हमारे जितने भी कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैंने इनको कभी नहीं बताया कि मेरे पास सर्वेज की रिपोर्ट्स भी हैं और ज़ाहिर है पब्लिक पल्स का पता चलता रहता है। मैंने सोचा कि ये अपनी अपनी हल्के में मेहनत करें, अवाम को रीच आउट करें, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, फतह से नवाजा। ना सिर्फ लाहौर में, मियाँ वाली में, सरगोदा में, साहिवाल में अल्लाह ताला ने फतह से नवाजा, बल्कि हरीपुर खैबर पख्तूनख्वा में भी अल्लाह ताला ने एक रिसाउंडिंग विक्ट्री PMLN को दी है माशाल्लाह। आप भले कह सकते हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन ये जो पिछला दौर गुजरा है 4 साल का, इसमें भी हुकूमत हमारी नहीं थी, लेकिन हम तमाम बाई इलेक्शंस जो हैं वो जीते थे। और जो जब पूरी धांधली के बावजूद, पूरी जब धांधली होती है पूरी दुनिया देखती है, आपने देखा था वो जो डस्का में हुआ था, जब अचानक धुंध आ गई थी और पूरा प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर्स थे, अमला था, वो सारा गायब हो गया और 12 घंटे बाद उनको लाया गया। तो हमें कुछ हज़ार से हरा दिया गया, लेकिन अगले ही दिन जब हमने प्रोटेस्ट किया, अगले ही दिन मैं डस्का गई, तो फिर वो फतह मुस्लिम लीग नून के नाम हुई। तो मैं ये समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून ने तमाम मुश्किलात के बावजूद
जेलों में जाने के बावजूद, पूरे ख़ानदानों पे, जमात पे तकलीफ के बावजूद यहाँ पर जो मेरे दाएं और बाएं रहनुमा बैठे हैं, सब ने बहुत कुर्बानी भी दी है और एक कड़ा वक्त भी देखा है। लेकिन खुशी मुझे इस बात की है कि मुस्लिम लीग नून ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया और जितनी भी मुश्किलात आई हैं तमाम का न सिर्फ बहादुरी से सामना किया, अवाम को अपनी ताकत बनाया और कभी किसी इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। और इलेक्शन का बॉयकॉट इन्होंने भी नहीं किया। मैं दोबारा आज ये बात कहना चाहती हूँ कि हर जगह, यहाँ पर मेरे सामने तमाम कैंडिडेट्स बैठे हैं, हर जगह इन्होंने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए और हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों ने कहीं अपनी बीवी खड़ी की, किसी ने कहीं अपना भाई खड़ा किया, अपना कजन खड़ा किया, अपना रिश्तेदार खड़ा किया और बड़ी मुनाफिकत से उन्होंने ये फैसला किया कि अगर हम इलेक्शन हार गए तो हम कहेंगे हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया और अगर हम इलेक्शन जीत गए तो हम ये कहेंगे कि क्यों हमने इलेक्शन का बॉयकॉट किया, बावजूद इसके इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन आया कि हम जीत गए। तो ये जो मुनाफिकत उन्होंने की है कि हर जगह कैंडिडेट भी खड़ा था, हर जगह कैंपेन भी चलाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर की तस्वीर भी लगाई, हर जगह इन्होंने अपने लीडर का नाम लेके इन्होंने कैंपेन की और इलेक्शन से कुछ देर पहले इनके तमाम जगह इनके पोलिंग स्टेशन और वो पोलिंग बूथ्स जो हैं, वो पोलिंग कैंप्स जो हैं वो कायम थे, उसके अंदर ये बैठे भी हुए थे। वो और बात है कि वो सब खाली पड़े रहे, कोई वोट डालने नहीं आया। अब आप लाख तावीलें घड़ते रहे, बात यह है कि अब अवाम को समझ आ गई है, ना आपके कोई जलसों में आता है, ना आपके कोई बहकावे में आता है, ना आपके कोई अब ये जो आपने बयानियां कि आपने रट लगाई हुई थी ना, आपके बयानिए से अब लोग बेवकूफ़ बनते हैं। लोगों को वो जो 4 साल आप गुजार के गए हैं वो पाकिस्तान की तारीख में भले बदतरीन दौर याद रखा जाएगा, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है कि लोगों को असल और नकल का फ़र्क जो है वो पता चल गया है। और वो 4 साल जहाँ पर एक तारीख का बदतरीन दौर जो है उसके तौर पे याद रखा जाएगा, इबरत के तौर पे याद रखा जाएगा, वहाँ एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि जो कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, बयानिए की सियासत हो गई है। तो बयानिए की सियासत जिस तरह पिटी है इस दफा, वो कितनी देर बयानिया चल जाता है कि कोई चोर है, कोई डाकू है, बदतमीजी करो, जलसे में आवाजें लगाओ, लोगों को गिरेबान पकड़ो, ये गिरेबान पकड़ के घसीट दो, फलाना चोर है, फलाना डाकू है। और उन 4 सालों में जिस तरह सियासत को दागदार किया गया, जिस तरह सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, उसके गहरे असरात हैं हमारे माशरत के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर। उससे बाहर आते आते भी लोगों को टाइम लग जाएगा। इसलिए जो खुद वो 4 साल में कर चुके हैं, आज वो उस चीज का अगर शिकवा करते हैं तो उस बात की ना कोई वक़्त है, ना कोई अहमियत है और ना ही उस पर कोई सीरियसली कान धरता है। उसकी वजह ये है कि अभी चंद साल पहले आपने जो लोगों के साथ किया था, आज आप उसका रोना रोएंगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी बात। ये जो तमाम एक जिसको कहते हैं कि रवायत आपने सियासत में डाली है, ये हमें उसी दिन पता था कि इट विल कम टू हॉन्ट यू एंड इट इज हॉन्टिंग यू नाउ। तो मुझे खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला के फजल से जो नैरेटिव है वो बदतमीजी, बदतहजीबी, गाली गलोच, खवातीन को आवाज़ें कसने, खवातीन की बेहुरमती करने, लोगों के घरों की सियासत करने, लोगों को गाली देने से, शोर शराबा, फितना, फसाद, दंगा, लड़ाई, उससे जो नैरेटिव है वो अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस के ऊपर वापस शिफ्ट हुआ है। और आप बॉयकॉट करें या आप कुछ भी करें, जब जेन्युइनली लोगों की ताकत होती है उसको ना कोई बॉयकॉट रोक सकता है, ना कोई जुल्म रोक सकता है, ना कोई और चीज रोक सकती है, ना कोई कर्फ्यू रोक सकता है। तो ये लोगों को इस बात का एहसास हो गया है कि उनकी बका, इस मुल्क की तरक्की, लोगों की बेहतरी जो है वो इसी चीज में है कि मुल्क चलता रहे, मुल्क तरक्की करता रहे और जो हुक्मरान हैं वो सिर्फ हुक्मरान बन के ना बैठा रहे, वो बदलियत की सियासत ना करते रहे, वो तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करें, वो आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए परफॉर्म करें। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आज PMLN के सीनियर्स भी मौजूद हैं, पुराने लोग मौजूद हैं जो जनरेशन से मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, मुझे नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। तो मैं एक बात जिसको मैं अक्सर सोचती हूँ, लेकिन आज शायद मैं पहली बार करने लगी हूँ, और वो ये है कि जो खिदमत है
वो इतनी आसानी से ना मिटाई जा सकती है ना भुलाई जा सकती है। और अगर आप गौर करें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करें, लेकिन हम सब ना सिर्फ सियासत के तालिब इल्म हैं बल्कि तारीख के तालिब इल्म हैं। पिछले 40 साल में कोई एक ऐसा सियासी रहनुमा, कोई एक ऐसा सियासी लीडर, कोई एक ऐसा सियासतदान जिसने 40 साल से ना सिर्फ ये कि वो सर्वाइव कर रहे हैं बल्कि जो तारीख की बदतरीन साजिशें वो उनके खिलाफ हुई हैं। 3 दफा अल्लाह ताला ने इक़्तिदार किया। वाहिद पॉलिटिशियन पाकिस्तान का, वाहिद सियासी रहनुमा पाकिस्तान का, वाहिद लीडर सियासी पाकिस्तान का जिसको अल्लाह ताला ने 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बनाया। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अल्लाह ताला ने तारीख रकम की, 3 दफा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम से, पहला शख्स है। लेकिन 3 दफा साजिश करके उनको निकाला गया। ये एक वाहिद लीडर है जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बने, 3 दफा साजिश से बाहर निकले। हर दफा हर किसी ने ये क्लेम किया, साजिशियों का हर दफा एक नया ग्रुप आ जाता है, उसका ताल्लुक कुछ हाथ मिला लेते हैं, कुछ नया ग्रुप एक इमर्ज कर जाता है और हर दफा वो ग्रुप आके उसने एक ही दावा किया। मुशर्रफ से लेकर अब तक जनरल फैज तक सब ने एक ही दावा किया। उन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ, बल्कि अल्फाज थे मुशर्रफ के कि नवाज शरीफ इज हिस्ट्री, कि ना, और हर दौर में, साजिशियों के दौर में आप सुनते आए हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, नवाज शरीफ तारीख का हिस्सा बन गया, नवाज शरीफ की सियासत हमने खत्म कर दी। इमरान खान ने भी यही क्लेम्स किए थे। आज आप देखें 40 साल में वो पहला रहनुमा है, पहला सियासी लीडर है अल्लाह ताला के फजल से जो आज भी तारीख रकम कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनके भाई हैं, मरियम नवाज उनकी बेटी है, लेकिन हुकूमत नवाज शरीफ की है। तो ये कहना एग्जैजरेशन नहीं होगी कि 40 साल में वो वाहिद रहनुमा है जिसने एक साजिश के बाद दूसरी साजिश जो है वो बर्दाश्त की, उसका मुकाबला किया, एक जुल्म के बाद दूसरे जुल्म का मुकाबला किया, 11 साल 40 साल में जलावतनी बर्दाश्त की और वो तकलीफात बर्दाश्त की हैं कि जिनका शायद अहाता भी मुमकिन नहीं है और शायद जिनको हम महसूस नहीं कर सकते। जिस तन लागे सो तन जाने। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजल से पूरी आबो ताब के साथ खड़ा है और इस मुल्क का प्रेजेंट भी वो है, पास्ट भी वो है, इंशाल्लाह फ्यूचर भी वो है। और ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि ये मेरे वालिद हैं, मैं एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पे मैं ये बात कर रही हूँ। और जिन्होंने ये दावे किए, 40 साल से ये दावे होते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म है, नवाज शरीफ के जो है हमने ही इज हिस्ट्री, तो आज तुम्हारा जिक्र भी ना होगा दास्तानों में। आज वो तारीख के किस कूड़ेदान में पड़े हैं, तारीख के किस किताब में बंद पड़े हैं, हम नहीं जानते। जिसके बारे में वो ये कहते थे वो ये आपके सामने बैठे हैं अल्लाह ताला के फजल से। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि नैरेटिव अपना कभी इस बात पे बिल्ड नहीं किया कि फलां चोर है, फलां डाकू है, उसकी बेटी को उठा लो, उसकी बहन को उठा लो, जेल में बंद कर दो, जुल्म के पहाड़ तोड़ दो। अपना नैरेटिव बिल्ड किया तो वो खिदमत के ऊपर किया, मेहनत के ऊपर किया। आज भले लोग हमें ताना देते हैं कि मरूसी सियासत का, लेकिन विरासत में क्या सिखाया? और विरासत सिर्फ बच्चों को पास ऑन नहीं हुई, भाई को नहीं मिली, सब उसके जो सबके हिस्से में वो आया। क्या किया? काम सिखाया। आज आप भले कहें कि शहबाज शरीफ साहब मुझसे आगे चले गए हैं, मरियम अच्छा काम कर रही है, लेकिन वो काम हमने किससे सीखा है? वो काम हमने नवाज शरीफ से सीखा है। और आज भी बिला नागा रोज जब मैं घर जाती हूँ या घर से निकलने लगती हूँ तो मैं सलाम करती हूँ जाके, तो यही कहते हैं बेटा अपनी नीयत को नेक रखो, अपनी नीयत को के अंदर जो खुद नुमाई मत आने दो, अवाम के अंदर जाओ, अवाम की खिदमत करो, उनकी जो रोटी है, उनकी जो रोजमर्रा की जरूरियात हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल करो। हर रोज ये बात करते हैं, हर रोज, और हर रोज मेरे दिमाग में ये बात जो है वो बहुत ये पक्की होती जा रही है। तो हमने विरासत में गाली देनी नहीं सीखी,
ہم نے وراثت میں بدتمیزی کرنی نہیں سیکھی, ہم نے وراثت میں بد تہذیبی نہیں سیکھی, ہم نے وراثت میں خواتین کو آوازیں کسنا نہیں سیکھا, ہم نے وراثت میں انتقام لینا نہیں سیکھا, ہمیں وراثت میں نااہلی اور نالائکی نہیں ملی, ہمیں وراثت میں محنت ملی ہے, ہمیں وراثت میں عزت اور احترام کرنا سکھایا گیا ہے, ہمیں وراثت میں محنت کرنا سکھایا گیا ہے, ہمیں وراثت میں عوام کی خدمت کرنی سکھائی گئی ہے, ہمیں وراثت میں محنت کرنی, عوام کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا سکھایا گیا ہے. اور میں یہ بات برملا کہتی ہوں اور آج دوبارہ کہوں گی کہ پچھلے 40 سال میں اگر نواز شریف صاحب کی خدمت کو نکال دیا جائے, ان کے کاموں کو نکال دیا جائے, تو پاکستان میں کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا. اور یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا کہ پچھلے 4 سال میں تباہی, جیسے نواز شریف صاحب نے صحیح کہا کہ تباہی کے دھانے تک معاشرتی تباہی اور جو اقتصادی تباہی, ہماری جو فورن پالیسی, فورن ریلیشنز کی جو ہماری تباہی ہے, ہر قسم کی تباہی اس ملک میں ان 4 سالوں میں لائی گئی. اور پھر وہ ملک جو ترقی کی منازل طے کر رہا تھا, ریکارڈ توڑ رہا تھا نواز شریف صاحب کے دور میں, وہ پھر زمین کے نیچے چلی گئی وہ ساری انڈیکیٹرز. اور آج صرف 1.5 سال کے اندر ہمیں جب حکومت ملی تو لوگ کہہ رہے تھے ڈیفالٹ کر جائے گا ملک, اور اس انتظار میں پاکستان کے دشمن اندرونی اور بیرونی اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ پاکستان کب ڈیفالٹ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے 1.5 سال کے اندر آج ڈیفالٹ کی نہ کوئی بات کر رہا ہے اور نہ کوئی ذکر ہے. آج صرف یہ ذکر ہے کہ کل اسٹاک مارکیٹ نے کون سا ریکارڈ توڑا تھا اور آج کون سا ریکارڈ بنا رہی ہے. مہنگائی 40% سے اگر 4% پہ آئی ہے تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید تاریخ میں اس کی بھی مثال نہ ملتی ہو. اور جتنی محنت سے یہ نواز شریف صاحب کے دور میں 2-3% سے مہنگائی کو 40% پہ لے کر گئے تھے, اس کے لیے بھی نالائکی اور نااہلی کا بہت بڑا معیار چاہیے جس پہ یہ 4 سال میں لے کر گئے ہیں مہنگائی کو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے عوام دیکھ رہی ہے, مجھے خوشی ہے کہ عوام دیکھ رہی ہے اور عوام اس چیز کو محسوس کر رہی ہے, عوام تبدیلی, حقیقی تبدیلی کو محسوس کر رہی ہے. اسی وجہ سے چاہے وہ یہ دھرنے کی کال ہو یا جلسوں کی کال ہو یا بوائکاٹ کی کال ہو یا کوئی بھی کال ہو, عوام نے ان کے اوپر یقین کرنے سے صاف انکار کر دیا, صاف انکار کر دیا. اور اس کی گونج خیبر پختونخوا میں بھی پہنچی. خیبر پختونخوا کے لوگوں کو بھی جب پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ اپنا گھر اسکیم میں جو تقریباً 1.25 لاکھ گھر بن رہا ہے اس وقت 10 ماہ کی قلیل مدت میں, بڑے بڑے اسپتال بن رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے لوگ بھی علاج کے لیے پنجاب آتے ہیں اور ہمارے دروازے, دل کے دروازے, اسپتالوں کے دروازے, تمام منصوبوں کے دروازے ان کے لیے بھی کھلے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا علاج مل رہا ہے پنجاب کے عوام کو, سستی روٹی مل رہی ہے, 1.5 سال ہو گیا پنجاب میں روٹی کی قیمت نہیں بڑھی, آٹے کی قیمت نہیں بڑھی, اور یہ بہت مشکل فیصلہ ہے کہ کسان کو بھی نقصان نہ ہو اور لوگوں کی روٹی کی اور آٹے کی قیمت بھی نہ بڑھے. آج پنجاب وہ واحد صوبہ ہے جس نے جب 12 اور 13 کی روٹی کی تو 12 اور 13 سے 15 روپے کی روٹی نہیں ہوئی, آج بھی وہیں کھڑی ہے. باقی صوبوں میں روٹی کی قیمتیں بڑھ چکی, آج پنجاب ایک واحد صوبہ ہے جس میں چھوٹے شہروں میں بھی لوگوں کو گرین بس کی سواری مل رہی ہے, 20 روپے کے اندر لوگوں کو بہترین ایئر کنڈیشن آرام دہ باعزت سواری مل رہی ہے. خواتین محفوظ تصور کرتی ہیں اپنے آپ کو پنجاب میں آج, وہی خواتین جن کا جینا محال کیا ہوا تھا, آج وہ چاہے وہ میری مخالف بھی ہو, وہ کہتی ہیں کہ ہم پنجاب میں اب امن و امان کی صورتحال اتنی بہتر ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم پنجاب میں اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتے ہیں. تو کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے پنجاب, سڑکیں بن رہی, 20,000 کلومیٹر سڑک صرف لاسٹ ایئر بنی, اور انشاءاللہ تعالی 10,000 کلومیٹر ہم اس سال ایڈ کریں گے. 30,000 کلومیٹر سڑک 2 سال میں بن جانا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اسی طرح کسان کے لیے جتنا کام ہو رہا ہے, جتنا ایک عام انسان کے لیے کام ہو رہا ہے, اور لوگوں کے لیے ہر روز پرائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے کام ہو رہا ہے, لوگوں کی بہترین ان کو سواری کے لیے کام ہو رہا ہے. ستھرا پنجاب آپ دیکھتے ہیں, پورے لینتھ اینڈ بریتھ پنجاب کی صاف ہو رہی ہے, لٹرلی سڑکیں دھلتی ہیں روز. جو 1.5 لاکھ لوگوں کو امپلائمنٹ ملی ہے وہ صاف کر رہے ہیں پنجاب کا کہ طول و عرض کو, محلے صاف ہو رہے ہیں, گلیاں صاف ہو رہی ہیں, سڑکیں صاف ہو رہی ہیں. تو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, اسی لیے ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کو ووٹ ملا ہے. اس فاؤنڈیشن پہ نواز شریف صاحب کی 40 سال کی سیاست کھڑی ہے. اس کو مٹانا اتنا آسان کام نہیں. تو میں خوشی مجھے اس بات کی ہے کہ
कि लोगों को ऊपर इनकी मुनाफिकत अया हो गई। अब जो जितना 4 साल में बेवकूफ़ बना सकते थे लोगों को, अपना झूठ बोल के मुनाफिकत करके बनाया, लेकिन लोगों को समझ आ गई है कि उनकी अगर बका है, मुल्क की अगर सलामती है, मुल्क की अगर तरक्की, तो वो शायद उसकी चाबी अल्लाह ताला के फजल से मुस्लिम लीग नून के हाथ में। और एक वाहिद जमात है, वाहिद जमात जिसने काम करके दिखाया है, जिसने अपने हर दौर में मुल्क की किस्मत अल्लाह के फजल करम से तब्दील की है, जिसको काम करना आता है। तो मुस्लिम लीग नून को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त प्रेजेंट भी है, मुस्लिम लीग नून का फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और मैं एक दफ़ा फिर मैं ये आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ, और मेरी ये अर्ज़ होगी आपसे कि पहले दिन से आप अपने हलकों में वापस जाके अवाम की खिदमत का रिकॉर्ड कायम करें। लोगों को पता होना चाहिए कि जिसको उन्होंने वोट दिया है वो हर वक्त हर लम्हा उनकी खिदमत में हाजिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला नवाज शरीफ साहब को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और वो हमारी सरपरस्ती करते रहें, पाकिस्तान को की तरक्की में अपना पूरा हिस्सा जो है वो डालते रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नौमंतखब अरकान असम्बली से खिताब जारी था। उन्होंने कहा कि नौमंतखब अरकान कौमी असम्बली को मुबारकबाद देता हूँ।